Dear students, today we are going to discuss about a very unique cell organelles which is also a little bit confusing for the students. So let me clear all the things about it. So listen carefully. Today we are going to study about the centrioles. So many times students are confused about the centrioles and the centrosomes. They consider that both things are maybe the same thing, but just clear this thing in your mind that they are not the same thing, because centrosome is an organelle usually containing two cylindrical structure that is called centriole. तो इट्स अ माइक्रोस्कोपिक सेल ऑर्गेनेल्स. अभी जैसे मैं आपको बताना स्टार्ट कर रही हूँ, आप आराम से सुनेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड इट. So it is a microscopic cell organelle found in animal cells except mature mammalian RBC. If I just want show you this diagram, here you can see this one represents the centriole. So mostly it is absent in prokaryotes and some members of fungi and the higher plants. They are not found there. They are mostly present in all the animal cell except mammalian RBC. And what is the special thing about it, that these two structures which are just you can say cylinder like structure and they are perpendicular to each other. अगर आप देखोगे तो बीच में इनके 90 डिग्रीज का एंगल जो है ये बनता है. दैट वन जो है ये अपराइट कंडीशन में है एंड अनदर इज़ इन द लाइंग पोजीशन में है. तो ये जो दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं दैट आर कॉल्ड सेंट्रियोल. एंड ये भी नहीं सोचना है आपने कि ये दोनों ही मिलकर के सेंट्रियोल बनते हैं. इसमें ऐसा नहीं होता है. ये एक सेंट्रियोल है और ये दूसरा सेंट्रियोल है. तो दीज आर द इन द पेयर ऑफ टू एंड दीज सेंट्रियोल्स आर मेड अप ऑफ यू कैन से वेरी फाइन माइक्रोट्यूब्यूल्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स. ये मैंने जो बना रखे हैं यहाँ पर ऐसे लाइंस, तो ये आपको शो करते हैं कि दीज आर मेड अप ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. दे आर वेरी फाइन काइंड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. तो ये उनसे मिल करके बना होता है. एंड जब अगर हम इसको कट करेंगे, सपोज ये तो रॉड्स के शेप में आपको दिख रहा है ना, बट व्हेन यू कट द स्ट्रक्चर्स. अब इसके साथ साथ एक चीज़ और भी इसमें ध्यान रखनी है कि आपको ये तो मैंने दो चीज़ें बता दी कि दिस इज़ द सेंट्रियोल, this one and this one. Then the question arises, फिर then what is the centrosome? Centrosome क्या होता है? तो centrosome means you have seen this dotted structure also around it. तो these dotted structure is a kind of you can say granular kind of amorphous, granular no, not granular, it is an amorphous kind of fluid like structure, and that fluid kind of structure is usually we call it pericentriolar material. Why we call pericentriolar material? Because peri means periphery and centriole के चारों तरफ है तो centriolar material बोलते हैं. It is amorphous substance and ये पूरा टोटल complete apparatus ये सब ले करके क्या बन जाता है, ये पूरा complete बनता है हमारा centrosome. तो that means it is clear to you that centriole are these two. One is centriole, two is centriole, and then these amorphous substance which is present all around this. I black color I am dotted this is called pericentriolar fluid like structure. It is amorphous. तो ये सब कुछ कंबाइन कर दो तो क्या बन जाता है, फिर सेंट्रियोल बन जाता है. तो अब इनके अंदर अब सेंट्रियोल का काम क्या होता है, यू हैव स्टडीड इन द सेल डिवीजन चैप्टर कि सेंट्रियोल का काम होता है, जैसे मैंने यहाँ पर ये बना रखा है, अभी ड्रॉ कर रखा है आपके लिए, this one. This is the stage of the metaphase stage. There are so many stages in the mitotic cell division, starting from the prophase, metaphase, anaphase, telophase. These are the various stages of the cell division. So this stage is metaphase stage. अब इस metaphase stage में you can see that the chromosomes are arranged onto the equator plate. बीच में आ जाते हैं, सेंटर में. देखो ये दोनों chromosomes यहाँ पर लगे हैं. If I remove this ink पेन ये मैं डालूँ तो आपको क्लियर दिखेगा ना. आई जस्ट रिमूव इट. तो आप देख सकते हो सेंटर में जो है वो मेटाफेज स्टेज मिडिल में आ गए हैं. एंड ये रेड कलर के जो मैंने बनाए हुए हैं, दीज आर रेडिएटिंग फाइबर्स. ये जो इनको जोड़ के रखते हैं, दीज आर रेडिएटिंग फाइबर्स. एंड अगेन आप यहाँ पर देखेंगे तो यू कैन ईजिली सी द सेंट्रियोल. यहाँ पर ये एक सर्कल में, यहाँ सर्कल में, दीज टू सेंट्रियोल्स आर देयर. तो दैट मीन्स व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल. अब यहीं से आप फंक्शन भी निकाल सकते हो. दैट दीज centrioles, they produce microtubules and they guide microtubules to interact with kinetochore. What is kinetochore? Kinetochore, suppose this is the chromosome and this is the plate like structure, that is called kinetochore, and from these kinetochores these spindle fibers are attached, which you have seen there. These fibers are attached from here.
तो ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में भी आप आगे पढ़ोगे। तो बेसिकली इनका काम क्या होता है कि ये जो सेंट्रोसोम है हमारे यहाँ पर जो पड़े हुए सेंट्रोसोम नहीं, सेंट्रियोल्स जो यहाँ पर हमारे हैं, इनका काम होता है बच्चों कि ये क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं, जो काइनेटोकोर लगा हुआ उसके साथ में, और ये ऐसे फाइब्रिल स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। एंड देन देखो यहाँ पर भी मैंने नेक्स्ट स्टेप में दिखाया हुआ है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस सेंट्रियोल, जो ये वाला सेंट्रियोल, ये वाला सेंट्रियोल, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स, 1 क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम, 2 है ना, 2 हैं, तो दीज आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये इसको पुल अपार्ट करते हैं, दे पुल अपार्ट द क्रोमोसोम्स, तो इनको खींच के निकाल रहे हैं दोनों। एंड इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट दे बिकम हाफ, है ना, डिवीजन हो गया। तो बाय द स्टेज ऑफ एनाफेज यू हैव सीन दैट दीज क्रोमोसोम्स स्प्लिट्स। तो इनको ड्रैग करने के लिए टू सिस्टर क्रोमेटिड्स को इन अपोजिट डायरेक्शन यू ऑलवेज नीड दीज सेंट्रियोल्स। तो इन सेंट्रियोल्स की जरूरत पड़ती है, दैट मीन्स सेंट्रियोल प्लेज वेरी वाइटल रोल इन द सेल डिवीजन। एंड सेंट्रियोल यू ऑल्सो आई थिंक रिमेंबर, और इफ़ यू फॉरगेट तो मैं आपको बताती हूँ कि यू हैव स्टडीड इन द in the topic flagella, where I told you that flagella are extension of the cell membrane. तो here is a basal body kind of thing I have told you कि flagella जो अराइज करता है कोई भी अगर ये एनिमल है सपोज, यहाँ से बेसल बॉडी होता है और फिर यहाँ से ये फ्लैजिला निकलता है। तो दिस इज़ समथिंग, जो बेसल बॉडी है, ये बेसल बॉडी जो है वो भी किससे बना होता, मतलब जहाँ से अराइज किया हुआ था वो सेंट्रियोल जैसे से ही बना होता है। तो बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल से ही बना होता है। तो दैट इज़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हो पोर्शन ऑफ द बेसल बॉडी ऑल्सो। एंड दूसरे काम क्या हुआ, टू मेक द स्पिंडल फाइबर, दीज आर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स, सॉरी जस्ट अ मिनट, दीज आर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स, दीज, ठीक है, विच आर अटैच विद द क्रोमोसोम्स, तो वो कहलाते हैं स्पिंडल फाइबर। इफ़ आई ड्रॉ इट हेयर, सपोज दिस इज़ द क्रोमोसोम, तो ये इनको अपोजिट डायरेक्शन में ले करके जाने के लिए जो ऐसे ऐसे बन रहे हैं, दैट आर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर। And who produces this spindle fiber? These centrioles are responsible for the production of this spindle fiber. So this is the function of the centriole. Basically they help in the cell division, and also they are the major part of the basal body formation in the case of flagella and cilia. Then we come to the diagram. Suppose अब इनको हम ये जो ये है ना बेसल बॉडी, ये पूरा जो स्ट्रक्चर जिसको कि हम क्या मानते हैं, जिसको कि हम कहते हैं कि दिस इज़ द सेंट्रोसोम, ये पूरा, ये रेडिएटिंग फाइबर्स दिख रहे हैं आपको, ये सेंट्रियोल्स दिख रहे हैं दोनों, ये अमॉर्फस सब्सटेंस दिख रहा है, कंप्लीट सेंट्रोसोम। तो ये जो सेंट्रोसोम है, अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें, इसको हम कट करें अभी, तो ये पतले पतले रेड कलर के जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इनके अंदर। व्हेन यू कट द स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टली, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, विच इज़ गिवन इन योर बुक ऑल्सो। तो यू कैन सी दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर यू कैन फाइंड लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो, बट अगर आप इसको एक रथ का पहिया ना, जैसे कार्टव्हील जैसा होता है, तो दिस इज़ लुक लाइक कार्टव्हील, जैसे रथ का पहिया काइंड ऑफ थिंग ये आपको लगेगा। एंड अभी आप इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो यू विल फाइंड दिस इज़ नॉट सो टफ। तो आपने अभी फ्लैजिला एंड उसमें पढ़ा था, हाँ सीलिया एंड फ्लैजिला में आपने पढ़ा था कि दे हैव अ 9+2 काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। 9+2 में क्या था, 9 जो थे वो डबलेट्स थे, मीन्स ये 2 इस तरह से लगे हुए थे, एंड 1 एक सिंगलेट था। बट इन केस ऑफ दिस सेंट्रियोल इट इज़ 9+0। अब try to understand this, why I am saying that 9+0 is there. 9+0 is there means these are 1 2 3 4 5 6 7 8 9. If you started counting these are the 9 in number, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, these are the 9. But in the place of doublets, unlike cilia and flagella, it is triplet, 3 लगे हुए ना, 3 सब यूनिट्स की तरह आपको लग रहे हैं, लगे हुए 3 सब यूनिट्स। तो these are called triplet, and this central portion is not a central any kind of, जैसे वहाँ पर हम बोलते थे कि सिंगलेट है और डबलेट है, तो दिस इज़ नॉट द सिंगलेट, दिस इज़ कॉल्ड हब, HUB हब। तो इट इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल वगैरह कुछ नहीं है, ये डिफरेंट सी चीज़ है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप इसके स्ट्रक्चर में जाएंगे तो दीज आर द स्पोक्स, दीज आर द रेडिएटिंग स्पोक्स हैं, दीज आर ऑल्सो 9। तो ये हब से स्टार्ट होकर के यहाँ इनसे जुड़े हुए हैं जो 3 सब यूनिट्स हैं। एंड नाउ ये जो सब यूनिट्स हैं, इफ़ यू सी इट प्रॉपरली, हियर इट इज़ रिटन ABC लिखा हुआ ना इन तीनों पे, तो A को अगर हम कट करें तो यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दिस वन। इट इज़ मेड अप ऑफ 13 यू कैन से प्रोटोफिलामेंट्स, प्रोटो मीन्स और स्मॉल फिलामेंट्स से मिलकर के बना होते हैं। तो अगर काउंट करेंगे इस सर्कल को तो ये 13 बने हुए। एंड ये जो B and C हैं, दीज आर मेड अप ऑफ 10 सब यूनिट्स, और यू कैन से 10 प्रोटोफिलामेंट्स। तो दीज आर मेड अप ऑफ, दीज मीन्स मैं ABC की बात कर रही हूँ, तो A इज़ मेड ऑफ 13
protofilament, whereas B and C is made up of 10 protofilament. I am not going too much detail in detail so that you are unable to understand all the thing. तो मैं आपको उतना ही बता रही हूँ जितना आपको ज़रूरत है इस समय समझने की. तो ये हो गए. देन आप देखोगे कि ये एक स्ट्रक्चर है. आई जस्ट टेक द ग्रीन कलर, दिस वन. तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कनेक्टेड विद द A to C. दैट मीन्स इफ सपोज इट इज C, दिस राउंडेड स्ट्रक्चर इज C, तो दिस वन इज A. तो A और C का कनेक्शन है आपस में. दैट वाई यू कॉल देम AC लिंकर. वी कॉल देम AC लिंकर. दैट मीन्स ये लिंक कर रहे हैं एक दूसरे को. तो दिस इज द स्ट्रक्चर. आई थिंक इसमें और तो कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है. यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. अगर मैं दोबारा से एक बार रिपीट करूँ तो दीज आर द सब यूनिट्स, ग्लोबुलर सब यूनिट्स हैं. ये इन्हीं को जो सर्कल बने हुए ना, इन्हीं के ये आपको कट करके दिखाए हुए. तो इफ़ समबडी आस्क्ड टू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इट, तो यू कैन आई थिंक अब ईजिली टेल देम कि दैट सेंट्रियोल्स आर द hollow cylindrical structures, and when we cut it, they can show you the, just I'm taking the pen, 9+0 kind of arrangement. These microtubular structure, microtubules माने fine tubules, and each microtubule is a triplet and it is form of 3 subtubules. ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, इनको tubules बोलते हैं, subtubules. तो these are made up of 3 अब देखो एक होगा तो ये पूरा ऐसे होगा ना, ऐसे ऐसे. तो ये तो एक मेन यूनिट हो गया, इसके अंदर 3 पड़े हुए हैं. तो दैट्स वाई वी कॉल देम सब टिब्यूल्स विच इज़ कॉल्ड ABC. अब अपने कंफर्ट के लिए आपने इनके नाम दिए हुए हैं. देखो यहाँ इस वाले पे आपको दिखेंगे. You can see easily they have given ABC name, and A sub tubule is formed of 13 protofilament. This is given here. अगर काउंट करोगे तो 13 है. And B and C is made up of 10 protofilament. And इसके अलावा A and C linker is there. This is A and C linker. In center thing is known as hub, and this is connected to the these subunits by the help of the radial fibers that you call radial spokes. They are also made up of proteins, and I think that is all. If you go by the again, I want to just tell you about the function of these centrioles. तो function आपको अभी भी मैंने बताए थे कि they form the स्पेंडल फाइबर, और यू कैन से एस्ट्रल ऑल्सो. एक नया वर्ड भी आपको जानना चाहिए कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ एस्टर. एस्टर मीन्स समथिंग विच इज़ स्टार लाइक, है ना. तो यहाँ पर आप देखो ये जैसे ये बने हुए हैं यहाँ पर, these are radiating fiber, these are like star like things are there. तो जब आप सेल डिवीजन होता है तो देखो यहाँ पर भी मैंने बनाए हुए हैं ऐसे ऐसे स्टार लाइक, ये ऐसे ऐसे बन जाते हैं रेडिएटिंग फाइबर. तो सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या हुआ, तो फॉर्म एस्टर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, एंड दीज एस्ट्रल्स जो हैं बाद में यही क्या बना देते हैं, ये वाले स्पिंडल फाइबर, ये जो बीच में बने ये स्पिंडल फाइबर इन्हीं से बनते हैं. इन एस्टर, सपोज यहाँ पे देख लो, क्लियर और हो जाएगा. ये बने हुए ना, ये दीज आर कॉल्ड एस्टर्स. और जब ये इस तरीके से बना देती हैं तो ये क्या कहलाने लग जाते हैं दोनों तरफ से, तब ये कहलाने लग जाते हैं स्पिंडल फाइबर. ठीक है, आई थिंक आई हैव नॉट शोन इन द डायग्राम. तो दैट इज़ कॉल्ड स्पिंडल फाइबर. उनको हम बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में जब ये वाला है तो बना हुआ ना यहाँ पे, दिस वन. एंड दिस इज़ ऑल्सो फॉर्म द बेसल बॉडीज़. मैंने बताया था आपको सेंट्रियोल का काम है बेसल बॉडीज़ को भी बनाना, इनका काम होता है. एंड वेन एवर यू स्टडीज़ इन द चैप्टर रिप्रोडक्शन वेयर यू फाइंड दैट स्पर्म टेल को भी बनाते हैं. इफ़ यू सॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, तो स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ये ऐसे टेल बना हुआ होता है. तो यहाँ स्पर्म में देयर आर 2 सेंट्रियोल्स आर देयर. एक डिस्टल सेंट्रियोल यहाँ पर होता है, प्रॉक्सिमल यहाँ, डिस्टल यहाँ. तो 2 सेंट्रियोल्स होते हैं. तो डिस्टल सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म गिव राइज टू एक्सोनियम, क्योंकि टेल होता है ना स्पर्म को, तो उसके अंदर और जो भी टेल जैसी चीज़ होगी मैंने आपको बताया उसमें क्या होगा, स्पर्म होगा. तो वो फिर वो स्पर्म के अंदर क्या बनाते हैं, एक्सोनियम बनाने का काम करते हैं. तो दीज आर द मेन फंक्शन. तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस. लिटिल बिट आई थिंक डिफ़िकल्ट है आपके लिए, but now you can understand that centriole and centrosome are not the same thing. Okay, I think this is all for today, and you revise it, and if you find any problem then ask to me. Thank you.